Hello student, welcome to my YouTube channel K Maths Academy. Students, today I am going to discuss over a very important topic of vector analysis, that is circulation. In fact, circulation is a part of line integral. Right? In the previous videos, we have seen how to evaluate line integral along an open curve as well as different types of line integrals. Right? If you are a student of BSc, MSc with mathematics or preparing for any competitive examinations like IIT JEM, GATE, SET, PGT of various states, especially for Jharkhand PGT, then this video is going to be very helpful to you. Let us see what is circulation. Okay. If C with a simple closed circular curve, then the tangential line integral of vector point function f along curve C is known as the circulation of f along C, which is given as this one, that is line integral along closed curve C of f is defined as f dot dr, that is this is the function f and this is the value of dr, right, which is equal to f1 dx f2 dy plus f3 dz. The dot product of this f with dr gives us f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. राइट, तो देखिए यहां पर इस लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, एंड ग्रीन्स थ्योरम इज स्पेशली यूज्ड इन अ सरफेस दैट इज a plane. Green's theorem is especially used in plane, either xy plane, yz plane or zx. So if this curve C lies in xy plane, that is for xy plane we have z equal to 0, that is dz equal to 0. Then this line integral f dot dr is equal to f1 dx plus f2 dy becomes surface integral over surface A del f2 del x minus del f1 upon del y dx into dy. For yz plane we have x equal to 0, this implies dx equal to 0. x 0 होता है yz प्लेन में, तो डिफरेंशियल dx भी 0 होगा और तब ये लाइन इंटीग्रल का ये वाला पार्ट वैनिश हो जाएगा. तो फाइनली व्हाट विल वी गेट, सी f dot dr, this becomes f2 dy plus f3 dz. By applying Green's theorem, this line integral converts in a surface integral where this one del f3 upon del y minus del f2 upon del z dy dz. Now finally, if the curve lies in zx plane, for zx plane we have y equal to 0, that is dy equal to 0, then this line integral becomes line integral of f along curve C dy becomes 0, means we have f1 dx plus f2 dz. By applying Green's theorem, this will be converted in a surface integral where this one del f3 upon del x minus del f1 upon del z
एंड हियर व्हाट dx into dz। सर्कुलेशन में होता क्या है कि एक्चुअली हमको जो लाइन इंटीग्रल इवेल्यूट करना होता है वो अलोंग ए सर्कुलर कर्व। अब ये सर्कुलर कर्व अगर XY प्लेन पे लाई करेगा तो ग्रीन्स थ्योरम के इस कंडीशन को यूज करेंगे। अगर ये कर्व C YZ प्लेन में लाई करेगा तो फिर ग्रीन्स थ्योरम के इस कंडीशन को यूज करेंगे। और अगर ये फाइनली अगर ये कर्व लाई करता है ZX प्लेन में तो जहां y इक्वल टू 0 होगा, फाइनली हम लोग इसको इवेल्यूएट करने के लिए इस कंडीशन का यूज करेंगे। आगे हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट। Let us see the first question of today, that is the question number 19। एक्चुअली इससे पहले मैं 18 क्वेश्चन लाइन इंटीग्रल्स का सॉल्व कर चुका हूं, तो ये सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन राजस्थान TGT 2013 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है, देखिए अ वेक्टर फील्ड इज गिवन बाय दिस फंक्शन, ओके, and we have to evaluate the line integral of this vector field f along the curve this one where z equal to 0, right। तो सबसे पहले हम इस कर्व को अगर ड्रॉ करें तो दिस इज व्हाट अ सर्कल, x² plus y² is equal to a², center is at the origin, and since z equal to 0, that is this curve lies in xy plane, this one, okay। now आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपको मिलेगा sin y dx plus x into 1 plus cos y dy। ऐसे भी आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, यही मिलेगा। अब देखिए हम लोग कैसे यूज करेंगे ग्रीन्स थ्योरम को। तो ग्रीन्स थ्योरम को यूज करने से पहले एक फैक्ट को समझिए, दिस इज व्हाट P एंड दिस इज व्हाट Q। तो इंटीग्रेशन ऑफ P dx प्लस Q dy, दिस बिकम्स surface integral over surface A, this was what C is equal to del Q upon del x minus del P upon del y, ये dx and dy, right। तो डायरेक्टली आप इसको यूज करोगे, ये जो है उसको आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो ये तो कांस्टेंट x का dc 1, आपको क्या मिला 1 plus cos y। नाउ इट इज माइनस, सो हियर विल बी माइनस। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, दैट इज sin y का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा क्या cos y, एंड हियर इट इज dx एंड dy। Right now this will cancel, finally what do we have left, nothing, dx and dy। this is what, this represents the area of this curve, right, this one। then here it is the radius r is what a, then area of this circle becomes pi r square, that is pi a। तो ये आपके आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Let us see the solution of next question, question number 20। और ये क्वेश्चन आपका IIT JEM में पूछा गया था। ये एक लाइन इंटीग्रल है x plus 1 y e to the power x dx plus x into e to the power x plus 1 dy, और इसको हमको इवैल्यूएट करना है along this curve। ये देखिए यहाँ कर्व ऐसे, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर आपका ओरिजिन है, रेडियस a है, ओके। अब हमको इसको इवैल्यूएट करना है, तो लाइन इंटीग्रल becomes C x plus 1 y into e to the power x dx plus x e to the power x plus 1 dy। अब देखिए यहां पर ये जो पार्ट है ये आपका P है और ये जो पार्ट है ये आपका Q है। तो थोड़ा देर पहले मैं बोला Q dy, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये जो है ना ये होता है आपका डेल Q ओपन डेल x माइनस डेल P ओपन
del y and dx upon d and dx into dy। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप चाहो तो इसको अलग से निकाल। तो चलिए इसको हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, दैट इज del q by del x। तो पहले फर्स्ट फंक्शन इनटू डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ex, फिर आपका हो जाएगा फर्स्ट का डीसी 1 इनटू सेकेंड फंक्शन, ये आ गया, मतलब आपको मिलने वाला है दिस वन, ऐसे। अब ये देखिए p है, इसको भी आप डिफरेंशिएट करो y के रिस्पेक्ट में। तो जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y का डीसी 1, बाकी क्या कांस्टेंट, मतलब आपको मिल जाएगा ये ऐसे। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा दिस वन। नाउ अब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल में, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है del q by del x माइनस ये पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे del p by del y के रिस्पेक्ट में, तो दिस बिकम्स dx upon dy। राइट नाउ द वैल्यू ऑफ del q upon del x इज दिस वन, ओके, दैट इज what, x into e to the power x plus ex plus minus x into e to the power x minus e to the power x, right? This becomes dx into dy। Now we are looking this and this will cancel out, finally ex and ex is also cancel। लास्ट में क्या बचा देखिए, तो 1 बचा केवल, दैट इज ये dx into dy। अब ये फिर रिप्रेजेंट करेगा इसका एरिया को, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी फिर से ऑप्शन सी ही आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट। तो देखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो बहुत कम समय में आप आराम से बना सकते हैं। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, राइट। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक मजे की बात क्या है कि बहुत सारे ऐसे बुक्स मिल जाएंगे जहां पर इसका सॉल्यूशन क्या हुआ आपको मिलेगा ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके। इंपॉर्टेंट बात है कि इस क्वेश्चन को आप ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके नहीं बना सकते हो। इसका रीजन है P और Q जिस कर्व के अलोंग हम लोग लाइन इंटीग्रल को इवेल्यूएट करते हैं, उस कर्व के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, बट यहां आप देख सकते हो ओरिजिन पर ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है। क्यों ऐसा है, क्योंकि जैसे ही आप 0 0 पुट करोगे यहां पर, तो आपको मिलेगा 0/0 और यहां भी मिलेगा 0/0, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रीन्स थ्योरम का आप यूज यहां पर नहीं कर पाओगे। तब ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सिंपल होता है। आप इसको ऐसे सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -y dx प्लस x dy और नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए चूंकि r इक्वल टू 1 है, तो इसका हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू कॉस थीटा और y इक्वल टू साइन थीटा। तो x इक्वल टू कॉस थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और क्या d थीटा। dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा d थीटा, साइन थीटा का सी कॉस थीटा। अब आप उसको यहाँ पुट कीजिए, ठीक है, देखिए आपको क्या मिलता है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पुट करोगे, अब आप इस चीज को यहाँ पुट कीजिए, तो आपका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 2 पाई, सर्कल है, तो ये आपको मिल गया 0 to 2 पाई। अब माइनस y का वैल्यू साइन थीटा, ठीक है, और dx का वैल्यू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब ये आपको मिल गया साइन स्क्वायर थीटा, और x का वैल्यू है आपका cos थीटा, और dy का वैल्यू क्या है, cos थीटा d थीटा, मतलब ये आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और दोनों जगह से मैं d थीटा को कॉमन ले लिया। अब नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है, क्या है वैल्यू, 1 है, आप यहाँ 1 लिख दो, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ऐसे भी आप अगर यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा पुट करते तो वैल्यू कितना आता, 1 आता। ओवरऑल ये जो इंटीग्रांड है ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 to 2 पाई और क्या, d थीटा, क्योंकि इसका वैल्यू 1। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो ये आपका मिलेगा थीटा, लिमिट आपके 0 to 2 पाई, तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, 2 पाई माइनस 0, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, 2 पाई, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको मैं बोला ना ग्रीन्स थ्योरम का यूज करोगे, तो ये del q by del x का वैल्यू और del p by del y का वैल्यू दोनों सेम आ जाएगा, और तो वहां आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है, और आप लगा दोगे क्या, 0। लेकिन नहीं,
इसका आंसर क्या मिल जाएगा 2 पाई। काफी कंफ्यूजिंग सवाल है, ध्यान दीजिए। और तो इसके बाद वाला सवाल आप देखिए इसी पैटर्न का रहेगा, वहां पर फिर देखिए आंसर कैसे चेंज। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, राइट। आप यहाँ पे देखिए ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ओके, और इसी फंक्शन का हमको लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना है अलोंग द क्लोज्ड कर्व दैट इज अ सर्कल। ये नाउ दिस लाइन इंटीग्रल बिकम्स, मैं आपको बताया ना कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं, जहां भी आई है उसको आपको रिप्लेस कर देना है किससे, dx से। मतलब यहाँ dx, तो ये आपका हो जाएगा y dx माइनस ये आपका हो जाएगा x dy। i को dx से, y को i को dx से, j को dy से रिप्लेस कीजिए, ये लाइन इंटीग्रल आपको मिल जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप बिना समझे यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को अगर ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके आप बनाओगे तो डेल क्यू बाय डेल एक्स और डेल पी बाय डेल वाई का वैल्यू आपको सेम मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस रिजल्ट में पुट करोगे डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई, तो कट के आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको आप ग्रीन्स थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इससे पहले वाला को हमने सॉल्व नहीं कर पाया। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इस कर्व के हर एक पॉइंट पर ये आपका जो p और q होगा, मतलब यहां से अगर आप p बोलोगे तो y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ओरिजिन पर ये 0 पर ये डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग सॉल्व करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन लेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है, यूनिट सर्कल है तो cos थीटा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin थीटा। फिर से आप इसको डिफरेंशिएट करो तो dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा और d थीटा। आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dy इक्वल टू cos थीटा and what, d theta, right? Now let us substitute these values. So this becomes 0 to 2 pi, right? The value of y is what, sin theta, and the value of dx is minus sin theta, right? This will be minus sin square theta and d theta. Here again there is sin, here there is minus, the value of x is cos theta, dy is what, cos theta, that is cos square theta, finally you will get what, d theta। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर आप ये पुट करोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। नाउ लेट अस टेक नेगेटिव साइन एज ए कॉमन, देन दिस इज 0 to 2 पाई, राइट। और ये आपका क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू हम लोग सबको पता है, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जैसे ही 1 होगा तो फिर मुझे क्या मिलने वाला है, 0 to 2 पाई, दिस इज व्हाट, d थीटा। अब आप उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा थीटा, लिमिट होगा 0 to 2 पाई। अब देखिए माइनस अपर लिमिट 2 पाई माइनस 0, आपका वैल्यू क्या आ रहा है, -2 पाई। तो देखिए आपका आंसर मिल गया -2 पाई b। लेट अस सी the solution of question number 23. Here we have to evaluate this line integral, okay, around a closed curve C, where C is the unit circle outside the origin। मजे की बात है, ये सर्कल जो है ओरिजिन के अराउंड नहीं है, आउटसाइड द ट्रेवर्स once in the counter clockwise direction। तो ये आपके ऑप्शंस है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आंसर मिला 2 पाई, इससे जस्ट पहले वाला में मिला -2 पाई। अब इसमें क्या मिलेगा और इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। इससे पहले वाले दोनों सवाल को मैं ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, और ग्रीन्स थ्योरम का यूज करने से आंसर कुछ और आ रहा था, बट सवाल था कि वहां तो ग्रीन्स थ्योरम यूज किया ही नहीं जा सकता था। इंपॉर्टेंट बात ये कि यहां हम लोग ग्रीन्स थ्योरम यूज कर सकते हैं या नहीं, तो यहां हम लोग ग्रीन्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका P है
और ये जो आपका Q है हर एक पॉइंट पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है केवल 0 0 पर, बट ये तो कर्व 0 0 से दूर है ना। तो यहाँ हम लोग आसानी से ग्रीन्स थ्योरम का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम का जब भी आप यूज करने जाओगे तो ये आपका Q है और ये क्या है, P है। तो आपको दो चीज चाहिए, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम क्या करता है, इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, जहां हम लोग लिखते हैं del Q बाई del x माइनस del P अपन del y, और इधर क्या dx इंटू dy। तो पहले आप इसको फाइंड आउट करो, यानी del Q बाई, मैं यहाँ फाइंड कर रहा हूं, इसको पार्शियली आपको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले माइनस को आप बाहर कर लो, राइट, ऐसे, और एक बार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डीसी 1, फिर होता है माइनस एक्स अपना रहेगा, और नीचे वाला का जब डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 2x, राइट। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ देखिए तो ये वैल्यू अभी लेवल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, मतलब होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब इन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स, रिजल्ट मिला। ये क्या था ये del Q बाई del x। अब मैं यहाँ पर आपको फाइंड कर दे रहा हूँ del P बाई del y, ये है। तो जैसे पहले हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई का डीसी 1 माइनस y इंटू डिनोमिनेटर का डीसी पार्शियली y के रिस्पेक्ट में 2y, नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ y दो बार है, मतलब 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप नोटिस कीजिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों क्या है, सेम है। यही क्वेश्चन था इससे पहले, जब ये सर्कल यहाँ पर था तो हम लोग इसको ग्रीन्स थ्योरम यूज नहीं किए, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस था नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं था तो फिर डिफरेंशिएट कर नहीं सकते थे। और हम लोग कैसे बनाए थे उस समय, पैरामेट्रिक इक्वेशन यूज करके, ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका a del Q बाई del x, मतलब ये पूरा आप यहाँ बैठाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस del P बाई del y, तो सेम ही चीज है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे, और इधर आपका dx इंटू dy, तो सेम चीज है। तो फिर ये तो पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। यानी कि अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी 3 क्वेश्चन एक ही टाइप का था। आप देखें, एक में -2 पाई, एक में 2 पाई, और एक में क्या 0। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। और ये क्वेश्चन आपका GIC यूपी में आया था 2015 में, ठीक है। देखिए ये भी सर्कुलेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्लोज्ड कर्व है वो सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। एक यूनिट सर्कल है अराउंड द ओरिजिन, और एक चीज यहाँ गिवन है z इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिए z इक्वल टू 1 है, इसका मतलब dz इक्वल टू क्या है, 0 है। और इस लाइन इंटीग्रल का हमको वैल्यू इवेल्यूएट करना है। ये देखिए लाइन इंटीग्रल इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले ये देखना है कि z इक्वल टू 1 है, मतलब dz इक्वल टू 0 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ये फिर से रेड्यूस होके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, इस तरह से देखो, ठीक है। अब आपके पास ये क्या है, q है, और ये क्या है, p है। चूंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो फिर यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ ग्रीन्स थ्योरम। देन दिस विल बी व्हाट, डायरेक्टली आप इसको इधर डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, सॉरी इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, मतलब del Q बाई del x होता है ना, del Q बाई del x। तो y का डिसी q, y का डिसी x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और ये जो p है इसको आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली y के रिस्पेक्ट में, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो ये dx इंटू ये dx इंटू dy, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या, 0। काफी इजी क्वेश्चन पूछा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें एक t दिया हुआ है, t कैप। इसमें t कैप गिवन है जो एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, और c एक यूनिट सर्कल है जो किसमें है, xy प्लेन में है, और जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। देन द वैल्यू ऑफ
दिस लाइन इंटीग्रल इज। तो देखिए ये काफ़ी अलग टाइप का क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी है। ये देखिए dr, आप इसको कैसे बना सकते हो? तो दिस इज टी कैप डॉट dr को आप लिख सकते हो dr अपन ds और इनटू क्या ds इंटू ds। हम लोग को पता है ये dr अपन ds इज इक्वल टू क्या होता है? टी कैप होता है। तो फिर आप इसको लिख सकते हो टी कैप डॉट इसका वैल्यू टी कैप और इधर डॉट प्रोडक्ट ऑफ टी कैप विथ इटसेल्फ दैट इज 1 इंटू क्या ds। फिर लिमिट्स आपके होंगे 0 to 2 पाई बिकॉज दिस इज अ यूनिट सर्कल, राइट? दैट इज ds। फाइनली व्हाट विल यू गेट? दिस इज s, limit will be 0 to 2 pi, so this will be 2 pi minus 0, I mean 2 pi will be the answer. Your correct answer will be 2 pi means what? This। ये हम लोग नेक्स्ट एक क्यूट सा क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के व्यू से। ये क्वेश्चन भी आया कि जेम में एक मार्क्स में पूछा गया था। लिखा है द वैल्यू ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल अराउंड द यूनिट सर्कल। ये एक यूनिट सर्कल के अराउंड इस लाइन इंटीग्रल का वैल्यू वैल्यूट करना है, ठीक है? तो इसको देखो हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट देखिए यहाँ पर लाइन इंटीग्रल है ये x dy माइनस वाई dx। आप इसको अरेंज करो, तो अरेंज करोगे तो पहले x वाला मतलब माइनस वाई dx और प्लस x dy। अब जैसे ये अरेंज किए तो x dx का जो कोफिशिएंट है ये होता है आपका p और dy का कोफिशिएंट होता है q। तो अब आप इसको चेंज करो बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इनटू सरफेस इंटीग्रल। तो चेंज करोगे तो ये जो है ना इसको आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और ये होता है एक माइनस y का डीसी। ये वाला पार्ट को आप डायरेक्ट y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y का डीसी -1, तो -1 और ये 1 मिलके हो गया 1। ये है आपका dx इंटू क्या dy, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। अब यहाँ पर एरिया ऑफ dx इंटू dy, तो ये क्या था? एक यूनिट सर्कल था, राइट? तो एरिया ऑफ यूनिट सर्कल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस r = 1, तो इसका एरिया हो जाएगा πr² मतलब पाई इंटू 1² मतलब क्या पाई, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू पाई दैट इज व्हाट 2 पाई विल बी आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर व्हाट डी। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हो, सेकेंड मेथड। मान लीजिए ये मेथड 1 है, देखिए इस तरह से भी आप बना सकते हो। अगर आप यूज कर लो क्या पैरामेट्रिक इक्वेशन, तो x इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, क्योंकि r का वैल्यू 1 है। y इक्वल टू क्या होता है sin थीटा, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin थीटा एंड d थीटा। dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। अब आप इस पर यहाँ पर ये सभी वैल्यूज को पुट करो तो आपका लाइन इंटीग्रल आ जाएगा c। देखिए -y dx, तो -y मतलब माइनस साइन थीटा और फिर dx में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब दिस इज साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को मैं बाहर लिखूंगा। फिर x dy cos थीटा और cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और बाहर में लिख दिया क्या डी थीटा। अब आप इसका वैल्यू जानते हो कितना होता है 1, लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2 पाई, राइट? और ये क्या है डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका थीटा 0 to 2 पाई, लिमिट लो तो 2 पाई - 0 मतलब क्या 2 पाई। दिस इज द आंसर 2 पाई। तो ऐसे ही आप दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Question number 27, right? We have to use Green's theorem and we have to evaluate the line integral, this one. Okay, here is the curve. Remember, the given curve is what? This given curve is x² plus 4y² is equal to 4. By dividing 4 both sides, we will get x² by 4 plus y² by 1 and this is what 1, right? I mean this is an equation of ellipse. Okay, here it is the major axis and this one is the minor axis.
Right. Now let us evaluate. This is what Q and this is what P. By using Green's theorem, what will we get? We have to differentiate partially this one with respect to x. Then this will be 0 and this will be what? 5. Now differentiating P partially with respect to y, you will get this one will be 0, this will be minus 3. Minus plus 3, this is what? Dx into dy. 5 plus 3, this is 8. Now dx into dy. This is what? The area of this ellipse. As we know that area of ellipse becomes what? Pi into a into b. तो ये है आपका a, ये है b. Pi into a is what? 2 and b is what? 1. Thus we have 16 pi. This will be the answer. But 18 pi, 4 pi, 9 pi. So this will be the answer. Norm. Thus we have completed a total of 27 questions of line integral. Now in the next video we will see the application of line integral as well as how to solve line integral by using Stokes theorem. Thank you for watching this video. Keep sharing, keep learning. Okay.